Do you understand what is anatomy? Let's start with anatomy first. Okay, anatomy is basically a Greek word. Okay, I told you that anatomy initially is a structural, structural makeup, ki how that body is particularly made up of. Okay, what all things that body is made up of. Okay, like atom का बना हुआ है. अब whatever we have studied, the chemistry, तो वहाँ पे atom, molecules and substance words. Okay, and they how they are arranged and they form a bigger molecule. Monomolecules जो है वो disaccharides, polysaccharides, and a big chain polypeptide chain. So same manner in human anatomy, ki a single cell, the smallest part of human body is a cell. That cell, forms a group of cells that is known as tissue. Those tissues form organs. Those organs, form your systems, and these systems work together or club together and form the human body. Okay, if I talk about anatomy has a different branch. Okay, for example, gross anatomy. Gross anatomy means the structure, how a particular human has that particular structure. Or if I talk about like animals, तो आपके dogs का एक कॉमन स्ट्रक्चर है, कैट्स का एक कॉमन स्ट्रक्चर है, ह्यूमंस का एक कॉमन स्ट्रक्चर है कि एनाटमी में बोन सेम होंगी, मसल सेम होंगी, नर्व सेम होंगी. दीज आर द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर. ओके, then microscopic anatomy, if I talk about like how those cells are arranged, how those tissues are arranged, and how they are formed, from where and how they look, everything we will see into that microscopic anatomy. Okay, developmental anatomy, if I talk about, embryological anatomy, if I talk about how that particular living organism is converted into whole, human being or whole particular species. Means ki if I talk about like every organism, how they develop, a male cell and a female cell, they club together and form a egg. ओके आपने बर्ड्स में भी देखा होगा कि एक सिंगल एग होता है. सेम थिंग्स ह्यूमंस में होता है कि एक मेल सेल होता है, एक फीमेल सेल होता है. दे फ्यूज टुगेदर. millions of male cells are there in case of human, but fusion सिर्फ एक का होता है, and rest of the cells they provide the nourishment. Okay, so एक male and female cell when they fuse together they form a zygote, and that zygote is single cell, then they divided into two, then 2 to 4 cell, then 8, then 16, and then 32. So this whole process of is known as your embryo formation, और बाद में वो fetus में या baby में convert होता है. Okay, so that is your developmental anatomy and embryology. Okay, so these are the basic main branches of human anatomy. Okay, physiology, if I talk about, like I told you ki earlier, ki for example ki you saw any vehicle is coming towards you. Okay, what is your body response? Okay, so your body response is ki you just move away in order to save yourself. This is what we generally do. If you see a needle is coming and going to prick you, what you will do? You just remove that particular body organ, whether your hands, whether your legs. You try to remove that part from that particular needle. It will not prick, it will not cause harm to you, because you experience that if this thing comes, either it will, for example, if a candle, burning candle is coming towards your hand, you'll see this is going to cause me a burn. What you are going to gradually do, you are going to remove your hand. Why this is so? Because when you see with your eye a vehicle is coming or a candle is coming towards you, that message from eyes, that sensory organ is going to send that message to your brain. Okay, so sensory nerve is going to take this message to the brain. From brain, again a message is released to that particular locomotory organ, like your hands, legs, who has to take action. Yes, you have to, and that action is what? You have to remove that part. Or if you see key vehicle is coming towards you, you are going to run on opposite side in order to save yourself from getting involved into any kind of accident. So this is your reflex mechanism. So you can see how different body parts are synchronized together, they work together, and this whole synchronization and work is coming under your physiology. Okay, so word physiology is derived from Greek word for study of nature, and this study how that particular body parts is going to work or function. Okay, clear till now, guys? What is anatomy, what is physiology, and what is different branches of anatomy? Yes. Okay. Now, coming to
Your next part is your homeostasis. There is a two word. One is homeostasis, another is hemostasis. Anyone can tell what is homeostasis and what is hemostasis? Hemostasis would be, I think, it will be the maintenance of the related to maintenance of the blood, stoppage of the blood flow. Homeostasis would be, I think, it is the maintenance of the body environment. That's what ओके, I think. यू कैन सी कि आउटसाइड का टेम्परेचर क्या होता है, कई बार आपका जो है 21 भी चला जाता है, कई बार 45 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है, बट बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द एग्जैक्ट temperature of human body. Now why it is so? Just because of body has its own mechanism of maintaining that constant body temperature until and unless you are not sick. आप sick है तो ये body temperature या तो high हो जाता है या low हो जाता है. अगर high हो गया तो हम उसको fever बोलते हैं, ठीक है, and low हो गया तो हम hypothermia बोलते हैं. Thermia is a temperature, okay. Hyper or hypothermia, two conditions will be there, okay. Clear? जी. So तो होम्योस्टेसिस में बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि वो पर्टिकुलर स्टेट को मेंटेन करे उस 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को. एंड वो कैसे मेंटेन होता है, तो देर आर सर्टेन हार्मोन जो केमिकल सब्सटेंस एक्शन लेते हैं, वो मेंटेनेंस में, बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस में मेजर रोल प्ले करते हैं. अदर देन दैट, इफ आई टॉक अबाउट ब्लड, ह्यूमन ब्लड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर होम्योस्टेसिस. होम्यो मीन्स कि होम लाइक feeling, you are where you can feel cozy, safe and everything. Okay. Hemostasis, if I talk about, hem means blood, how that blood is going to stop. Stasis means stop. एक पर्टिकुलर स्टेट पे आप उसको स्टॉप कर रहे हैं, तो ब्लड को कैसे स्टॉप कर रहे हैं, अगर कोई कट लग जाए, कोई इंजरी लग जाए, तो बॉडी का क्या मैकेनिज्म है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड ऊज आउट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वहां पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है. वाई दिस हैपेंस सो? बिकॉज वहां पे बॉडी का मैकेनिज्म है हीमियोस्टेसिस में कि आपका जो है प्लाज्मो थ्रोम्बिन रिलीज होगा, फिर वो क्या करेगा कि फाइब्रिनोजन का मैश, फाइब्रिन का एक मैश क्रिएट कर देता है, एक जाल टाइप का नेटवर्किंग कर देगा, जिसकी वजह से उधर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन होके, और एक्सेसिव ब्लड बॉडी से नहीं निकलता है. दिस इज योर हीमियोस्टेसिस, ओके. There is a whole process जहाँ पे आपका 12 to 13 clotting factors हैं and different thing, but in general जो है आपका this is hemostasis. And homeo means कि आप temperature maintain कर रहे हैं, home like environment create कर रहे हैं human body का, okay. Clear? So now coming to the structural organization of human body. What is the structural organization? Like every, I told you, every chemical substance is made up of atoms, molecules, compound, and वो size में increase करते जाते हैं, ठीक है. जैसे compound बन गया, वो बड़ा हो गया. uni chains are single, okay. Di two molecule हो गया, ठीक है. Poly means a group or chain of that particular compound. तो आपका poly chains हो गया या poly compounds हो गया, okay. सो एज द नेम इंडिकेट कि जूनियर से सीनियर की तरफ जब बढ़ते जा रहे हैं तो साइज में वो ग्रो करता जा रहा है. सेम थिंग हैपेंस विथ ह्यूमन बॉडी, ओके, कि द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट इज योर सेल. द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू. द ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स organ, and group of organs form system, and this whole system, when they work together or club together, they forms a complete organism. Okay, clear? So you can see कि how कि different organs, मैंने आपको जैसे बताया कि when you feel hungry what happens, or when you are moving outside from any of very delicious restaurants or any outlets, what do you see, when smell comes into your nose, what happens? Salivation starts, okay. So why this is so? Because of every system is synchronized together. आपके ब्रेन ने ऑल्फैक्टरी से ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने क्या किया कि ओ वी शुड सलाइवा. व्हेन सलाइवेशन स्टार्ट्स, जब आप फूड च्यू करते हैं तो वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, एंड वहां पे कि यू शुड ईट दिस, यू शुड ट्राई दिस, तभी आपका सलाइवेशन इंक्रीज हो जाता है, ओके. सो दिस इज हाउ योर होल बॉडी इज कंपोज.
of, okay, कि small level से single मतलब nose से smell से brain, so everything, you know, work together. Same thing happens with your atom, molecules and compounds. Okay, so in the same manner your human body is composed of. Okay, the cell is, if I talk about in human body, the smallest unit is of a life, any life or any living organism is your cell. Okay, so all life dependent, you know, things on this planet is made up of cell. Okay, and this cell is responsible for multiple activities, you know, like if I talk about आपका growth है, metabolism है, reproduction है, everything will be taken care by this defense mechanism है, these cells will be active. Okay, but which kind of cell, that varies. Okay, tissue is made up of similar cells and they perform a specific functions. Various tissues of a body, they were, if I talk about, they are divided into four major groups. Okay, like epithelial, connective, nervous and muscles tissue. As name indicate, epithelial means कि आपकी body का outer layer. Okay, maximum covering of any body, you know, any living organism. If I talk about human body, maximum tissues are made, you know, human body is covered with epithelial tissue. After epithelial comes your connective tissue, like you, if I talk about connective tissue, तो क्या होगा आपका, जो भी आपका इसमें bones, tendons and most certain parts of skins will also covered into this category, into your connective tissue. Okay, then your muscles tissues means the mass which provide. Okay, so there is basically three categories of muscular tissue. If I talk about skeletal, smooth and cardiac muscles. Okay, and nervous tissue found in brain, spinal cord and nerves. Okay, so these are the basic four categories of tissues. Okay, so the group of cells, when they link together, they are of similar type, they club together and they perform a specific function. For example, आपने देखा skeletal muscle tissues means कि सब कुशन इफेक्ट दिखाएंगे बॉडी में, प्रोटेक्शन देंगी, हीट देंगी एंड स्टोरेज करते हैं फैट और एडिपोज का. तो ये आपका मसल टिश्यू का फंक्शन है. आप सारे मसल्स बॉडी में सेम फंक्शन कर रहे हैं, बोन्स को और जितने भी आपके डेलिकेट ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ओके, नर्वस टिश्यू, इफ आई टॉक अबाउट ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, अदर नर्व्स, इनका क्या रिस्पॉन्स होता है कि जो भी बॉडी में एक्शन और रिएक्शन हो रहा है उसमें जो केमिकल मैसेज ट्रांसफर का काम है, दीज नर्वस टिश्यू विल प्लेस. ओके, तो आपका जो भी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म बॉडी में होगा, जो ब्रेन सोचता है, जो एक्शन लेता है, वो सारा आपका नर्वस टिश्यू की वजह से होता है. After tissue comes your organ. Organ is an integrated collection of two or more kinds of tissue that works and perform a specific function. जैसे कि आपका stomach. Stomach is made up of all types of tissue. ओके, पर पर्टिकुलर जैसे कि गैस्ट्रिक जूस भी सिक्रेट कर रहा है, बाइल जूस भी सिक्रेट कर रहा है, डाइजेशन भी कर रहा है, फूड का मूवमेंट भी कर रहा है, एक्सक्रीट मतलब उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है. तो यू कैन सी कि अ लॉट ऑफ, यू नो, फंक्शंस. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू नो, आपका उधर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स स्टमक में हर फंक्शन के लिए प्रेजेंट होगा. क्लियर? Next is your systems, the group of organs that work together to perform a major function will be your system. How many systems do you people know in human body? Anyone can tell me 2 to 3 systems? Excretory system, circulatory system, muscular system, neurological system, alimentary system. Elementary canal होता है. Yeah. Alimentary canal, digestive system. Yes, digestive system, respiratory system, cardiac system, excretory system, urinary system, nervous system, mucoskeletal system. These are there are lymphatic system. There are 11 basic 11 categories of systems present into the human body. Okay, so these are the examples of different systems. Okay, if I talk about organ, lung is an organ. If I talk about your heart is an organ.
But if I talk about cardiac, everything, related to the supply of your this heart, aorta and everything, that will be a part of your cardiac system or circulatory system. Okay. If I talk about heart itself is an organ. Clear? So anatomical terminologies means कि there are certain forms of हम suffix लगाते हैं, prefix लगाते हैं, और जैसे कि जनरल आप जितने भी terminologies पहले से पढ़ते आए होंगे, if I talk about, तो थोड़ा बहुत you will be familiar, okay, कि words के आगे हम root, suffix, prefix लगाते हैं and to make the things, system कहाँ लगना है, organ कहाँ लगना है, ठीक है, सेल कौन सा है, टिश्यू कौन सा है, तो यू विल बी एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, तो you can tissue is your suffix over there or prefix over there. So these are the things. Okay, so there are different if I talk about in human anatomy, tract is a word. Okay, तो हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं, हम यूरिनरी ट्रैक्ट भी बोलते हैं, हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं. ओके, तो ये आपका सारा जो है सफिक्स है. ट्रैक्ट इज अ सफिक्स, जहां का इंडिकेट करना है वहां उस वर्ड के आगे आप लगा देंगे. आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें आप रेस्पिरेटरी वर्ड लगा देंगे, आप एक्सक्रीटरी की बात करें आप एक्सक्रीटरी वर्ड लगा देंगे. ओके, सो प्रीफिक्स जो आपके पहले लगते हैं. ओके, so gradually when you start doing into your anatomy, if you are going basically into coding or case taking analysis or everything, in that scenario anatomy should be and suffix prefix should be very strong. Okay, now coming to anatomical position, basically you should remember कि आप जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, फेस की तरफ से अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है वो फ्रंटल सरफेस होगा, एंटीरियर जिसको कह सकते हैं. ठीक है, और बैक की साइड से या उधर से बात करूं आपका, तो ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया. बैक की साइड से मैं बात करूं तो आपका पोस्टीरियर हो गया, और फेस की तरफ से मैं बात करूं तो आपका एंटीरियर हो गया. ठीक है, एंटीरियर को हम वेंट्रल भी कहते हैं और पोस्टीरियर को हम डॉर्सल सरफेस भी कहते हैं. ओके, तो हैंड का भी जो पाम होगा ना, जिधर रेड फ्लैश ब्लड दिखता है आपको, वो आपका जो है पाल्मर सरफेस होता है, और जो बैक साइड है जहाँ पे स्किन है वो आपका डॉर्सल सरफेस ऑफ हैंड होता है. ठीक है, सेम थिंग अगर मैं पैरों की बात करूँ तो जो लोअर जो टुवर्ड्स द ग्राउंड फेसिंग है वो आपका प्लांटर सरफेस होता है, और जो स्किन वाला एरिया होगा वो फुट का आपका डॉर्सल सरफेस होगा. ओके, अदर देन दिस अगर मैं बात करूं तो सुपीरियर मीन्स कि टुवर्ड्स द हेड, और इंफीरियर मीन्स टुवर्ड्स द बेस. ओके, तो लोअर मोस्ट सरफेस को हम इंफीरियर कहते हैं और अपर मोस्ट सरफेस को हम सुपीरियर कहते हैं. ओके, अब बॉडी को हम डिवाइड करेंगे तो जो मिड लाइन है उसकी तरफ किसी सरफेस को बोलना है तो हम मीडियल बोलेंगे. ओके, एंड उससे दूर अगर हमें किसी सरफेस को लोकेट करना है तो लेटरल. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई ट्रॉमा ही बताना है तो हम कैसे लिखते हैं कि ब्रूज और दैट हेमाटोमा, हेमाटोमा मीन्स ब्लड क्लॉट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट लोअर एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन ऑफ बटॉक लिख दिया, या फिर आपका थाई है, वॉट एवर रीजन, आप ऐसे ही हम मेडिकली किसी भी चीज को डिस्क्राइब करते हैं. ओके, क्लियर गाइस? जी जी जी. यस मैम, यस मैम. बेसिकली आप सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और क्या कहते हैं कि इंफीरियर, इतना याद रखें. मिड लाइन के टुवर्ड्स जाएंगे तो मीडियल हो जाएगा और दूर जाएंगे तो लेटरल हो जाएगा. ओके, तो दीज आर द बेसिक डायरेक्शंस जो हम ह्यूमन एनाटॉमी में फॉलो करते हैं. या कोई भी एनाटॉमी का बंदा अगर मैं बोलूं कि किसी भी ट्रॉमा को एक्सप्लेन करना है या किसी भी लोकेशन को, पेन को, कुछ को भी, whenever a doctor wants to explain, या आपके पास basically when you're going to encounter all these things into any kind of case summaries, आपका जो भी मेडिकल का केस रिकॉर्ड्स होगा या केस समरीज होगा उनमें इस तरीके का आपको होगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई बर्न का केस होता है तो लिखते हैं हम, a blister is present on the dorsal surface of your foot
or on your plantar surface of hand, wherever it is present, we just simply describe that. A deep cut is present into the dorsal surface of wrist into this much inch, this much size. Okay, long elongated है, circular है, whatever it may be, we just simply write in this manner. तो आपको वहां पे directions का need पड़ता है. Clear? जी. Okay. So whenever any doctor used to describe their body parts, they use all these surfaces. Okay. So superior towards the head, inferior towards the feet, anterior towards the front part of the body, ठीक है, posterior towards the back, medial towards the midline, lateral away from the midline. Okay. अब proximal, distal and superficial. Superficial मैंने बोला कि आपका surface of the body पे, जैसे कि आपका मैं अगर एनाटॉमी में बोलूं कि हार्ट इज लोकेटेड ओके इंफीरियर टू द रिब केज, और हार्ट के रिलेशन में अगर रिब केज को डिस्क्राइब करूं तो जो आपका 11th या 10th फ्लोटिंग रिब्स होंगी ना, ये आपका सुपीरियर होते हैं हार्ट के. तो ये सुपीरियर मींस कि अबव, सुपरफिशियल सरफेस अबव हो गया, ठीक है, और नियर बाय सर्फेसेस में होगा. ओके. डीप मींस as deeper or as into the body surface. Okay, deep down into the body surface. जो आपका लोकेशन. पेरिफेरल मींस कि somewhat away from the central axis of the body हम बात कर रहे हैं. ओके. तो जैसे यूजुअली आपका जब पेन बोलेंगे ना, पेन वो पेरिफेरली रेडिएट हो रहा है, सेंट्रली रेडिएट हो रहा है, या सुपरफिशियल पेन है, डीप पेन है, व्हाटएवर. तो ये हम इन सब चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए डिजीज कंडीशन में वी यूज ऑल दीज थिंग्स. ओके. नेक्स्ट इज योर एक्सियल बॉडी पार्ट. मींस आपका एक्सियल मींस नियर द एक्सिस ऑफ द बॉडी. मींस कि आपका सेंट्रल लाइन मैंने दिखाया तो आपका हेड, नेक, थोरिक्स, चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस, इन तीन चीजों को एक्सियल लाइन में मानते हैं. जो ये बॉडी में एक सेंट्रल लाइन इधर आपने देखा होगा, तो इसी लाइन पे आपका ये सारे ऑर्गन्स आएंगे. आपका हेड आएगा मींस की ब्रेन, नोज आएगा आपका, लिप्स आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है, फिर आपका जो है हार्ट आएगा, आपका जो है आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा, ठीक है. so these are the chest, abdomen and pelvis, these are into your central line. okay. next, ये हम बॉडी को फर्दर डिवाइड करते हैं. अगर मैं स्टमक की बात करूं तो हम उसको 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, और 4 उसमें भी डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट एंड 9 रीजन्स में हम स्टमक को डिवाइड करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट ना, कि आपका 9 रीजन्स और 9 स्क्वेरिश पार्ट होते हैं, जिसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल पेन के लिए डिस्क्राइब करते हैं. तो अम्बिलिकल मींस की जो योर नेवल, नेवल आपकी जो नाभि है ह्यूमन बॉडी की, उसको सेंट्रल लेके उसके जस्ट ऊपर का एरिया, उसके नीचे का एरिया. तो ऊपर का एरिया है तो इपीगैस्ट्रिक, ठीक है, नीचे है तो हाइपोगैस्ट्रिक. हाइपो मींस बिलो, इपी मींस अबव. ओके. देन उसके राइट साइड का पार्ट हो गया हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट साइड का पार्ट हो गया लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है. फिर अम्बिलिकल के बगल वाला रीजन जो है वो लंबर रीजन होता है, तो राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन हो गया. और नीचे हाइपोगैस्ट्रिक के बगल में इलियक, क्योंकि इलियक बोन उधर फॉल करती है, तो राइट एंड लेफ्ट इलियक रीजन. तो एक तो हम 9 क्वाड्रेंट्स ऐसे डिवाइड करते हैं, 9 रीजन्स कह लीजिए. और आप जो है 4 क्वाड्रेंट, राइट क्वाड्रेंट, लेफ्ट क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, स्टमक को अगेन 4 क्वाड्रेंट्स में भी डिवाइड किया जाता है. तो व्हेनेवर अ डॉक्टर वांट्स टू लोकेट, हम कोई सा भी तरीका चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्टर. तो जस्ट व्हेनेवर ही इज डिस्क्राइबिंग एनी काइंड ऑफ पेन, कि पेन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एंड रेडिएट्स टू द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन और इलियक रीजन, तो आपको उस हिसाब से पता चलेगा. अच्छा, राइट इलियक में है तो मे बी इट इज अ एपेंडिकुलर पेन. ओके. अच्छा, राइट क्वाड्रेंट में है और सेंट्रल से स्टार्ट हो रहा है या रेडिएट टू द बैक कर रहा है, ओके, तो मे बी ये पेन रेडिएट करके बैक में जा रहा है, इट मीन्स कि रेफर्ड पेन है. एंड कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है वो स्टोन की बात कर रहा है, कैलकुलाई की बात कर रहा है, मे बी इट मे बी अ किडनी स्टोन. ओके. तो
So this kind of pain and description indicates certain kind of disease condition. तो ये हमारी डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए हमने बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में मेमोराइज करने के लिए डिवाइड कर दिया. वरना मैं पेशेंट बोलता रहेगा मुझे यहाँ पेन हो रहा है, अब वो यहाँ वर्ड दूसरे डॉक्टर को समझाना ऑन नोट्स वेरी डिफिकल्ट. So when we use certain kind of exact location, XYZ doctor towards any part of the world, if we follow common standards, he or she will easily retaliate और वो समझ जाएगा ओके ये पेशेंट ने ये बोला, डॉक्टर ने ये डायग्नोज किया एंड ये मेडिकेशन चलाया. तो दैट विल बी यूनिवर्सल. दैट्स व्हाई वी फॉलो सच काइंड ऑफ सिस्टम्स. ओके, और डिवीजन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी. सो just just leave this. Okay, it will be too much into sagittal plane, frontal plane, and transverse and oblique planes. When we do the dissections or something like that, so we need a brain and all dissections when we do. तो हमें ये सारे sagittal plane and all की जरूरत होती है, but for you can skip this. You need to understand the basic. Okay, तो आपको सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर सारा पता चल गया. ठीक है, फ्रंटल आपका पता है कि टॉप रीजन होता है, तो जस्ट रिमेम्बर कि टुवर्ड्स द टॉप रीजन इज योर फ्रंटल. ठीक है, सुपीरियर आपका क्रेनियल रीजन में, और उसको मिड से काट देंगे तो मिड सजाइटल प्लेन हो जाता है. ओके, नाउ कमिंग टू, हमने बेसिक सेल, टिश्यू, एवरीथिंग वी स्टडीड. नाउ कमिंग टू बॉडी में कितनी कैविटीज प्रेजेंस होती हैं. तो बेसिकली आपका बॉडी में जो कैविटी मीन्स हॉलो स्पेस, कि कॉमनली रेफर एज आपकी कैविटीज. तो उसमें जो आपने देखा होगा कैविटी लग जाती है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, उतनी दूर का हॉलो हो जाता है. वैसे बॉडी में भी सर्टेन कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जो हॉलो होती हैं. ठीक है, एंड ये हॉलो कैविटीज क्या करती हैं, ये या तो किसी ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही होंगी, ठीक है, या वहां पे जो है किसी चीज को सेपरेट करना. आप फॉर एग्जाम्पल साइनसेस होते हैं, साइनसेस भी आपके हॉलो कैविटीज होते हैं. रिब की जो हॉलो कैविटी है, पर वो क्या कर रहा है कि लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है. एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, डायफ्राम इंफीरियर, ये यहाँ पे क्या है आपका कि ये यहाँ पे अलग कैटेगरी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स प्रिजर्व्ड है. ठीक है, डायफ्राम के इंफीरियर में ऊपर आपका लंग्स हो जाता है, नीचे आपका डाइजेस्टिव पार्ट है. तो दीज कैविटीज, हॉलो कैविटीज वहां पे कुछ होल्ड कर रहा है. ठीक है, सो आपका अगर एब्डोमिनल कैविटी की बात करूं तो वहां पे आपका क्या क्या होल्ड होगा, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है. ओके, सो नाउ दिस इज अ बेसिक कि हम ह्यूमन बॉडी को कैसे कितने प्लेन्स में कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं. बट नाउ कमिंग टू द मेजर पार्ट कि व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी. मैंने बोला कि स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल. तो व्हाट इज द सेल एंड हाउ दैट लिविंग सेल इज ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर cell. So we are going to study all those things. Okay, cell is a basic living structural and functional unit of a human body. मैंने जैसे बताया कि घर बनाने के लिए आपको ब्रिक की जरूरत है, एंड उस ब्रिक पे ही आप सीमेंट लगाएंगे, देन नेक्स्ट ब्रिक रखेंगे, एंड देन यू विल बिल्ड योर होल एम्पायर. दिस इज व्हाट वी डू. सेम थिंग हैपेंस विद द ह्यूमन बॉडी आल्सो और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि वो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है टू बिल्ड दैट होल बिल्डिंग और टू बिल्ड दैट ऑर्गेनिज्म इज योर cell. Okay, and after that cell, if I talk about cytology is a branch of science that deals with study of cell. So those who we study, when we study the depth of cell and every science related to that particular cell, what is the mechanism, what is the physiology, what all organelles, what is the function of every organelle, वो आपका साइटोलॉजी का पार्ट हो जाता है. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट सेल, देयर इज सर्टेन थ्योरीज related to cell, we will study later on. Okay, so but just have an idea कि all those theories, famous theories की बात बता रही हूँ कि all those theories says कि all living organism is made up of cell and cell product. So that is a true, जो most widely accepted theories है उसमें से ये. ठीक है, cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. All cells come from the division of pre-existing cells. That is also true
कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर मैं बात करूं अमीबा की, अमीबा का आपको पता होगा वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है, ठीक है, और एक पार्ट को जब वो दो में डिवाइड करता है तो दोनों पार्ट दो नए पार्ट्स को रीजनरेट करते हैं। तो यू कैन सी कि आपका वो डिवीजन हो गया, रीजनरेशन मेथड ऑफ ग्रोथ वो फॉलो करते हैं, ठीक है। पर वो प्री एग्जिस्टिंग से ही ग्रो कर रहे हैं। हम ह्यूमंस की बात करें वो भी प्री एग्जिस्टिंग से ही ग्रो कर रहे हैं। आपका स्पर्म हो गया और आपका ओवम हो गया प्री एग्जिस्टिंग। ऐसी एनिमल्स में भी होता है, ऐसी एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, आपका प्री एग्जिस्टिंग से ही, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसी से नए बनते हैं, ठीक है। एंड ऑर्गेनिजम्स एज a whole can be understood through the collective activities and interaction of its cell. So if I want to understand the basic nature of that particular, for example आपने देखा होगा कि एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में क्या बेसिक डिफरेंस है। एनिमल क्या करता है, अपना खाना दूसरों से लेता है और फिर उसको यूटिलाइज करता है। बट प्लांट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो अपना खाना खुद बनाता है। दैट इज द ग्लूकोज और स्टार्च C6H12O6, और उसको फिर स्टोर करता है। और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पीपल, एनिमल्स क्या करते हैं, उसी से उसी खाने को खाते हैं फूड वेब में और उसी से सर्वाइव करते हैं। तो हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वी आर डिपेंडेंट बीइंग जितने भी जूलॉजिकल एनिमल्स हैं हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। आइदर हम अपने ही सब कैटेगरीज को खाते हैं, लोअर प्रेडेटर्स को हायर वन खाता है, हियरार्की अगर आप देखें तो फूड वेब की। एंड आइदर वो अगर हर्बीवोरस है, मतलब प्लांट बेस्ड है, तो वो प्लांट्स को खा के अपना सर्वाइवल करते हैं। ओके, सो टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन हमें इसका बेसिक समझना पड़ेगा। ओके, तो आप उसकी एक्टिविटीज की बेसिस पे, उसके इंटरेक्शन की बेसिस पे उस सेल को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, so cell is divided into four major parts. If I talk about plasma membrane, cytoplasm होता है आपका, okay, cytoplasm आपका organelles and inclusions, ठीक है। तो if I talk about plasma membrane, as name indicate membrane, membranes means की covering. So the outermost covering of a cell is known as your membrane. अब इसका फंक्शन क्या होता है इस मेम्ब्रेन का? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी में स्किन का क्या फंक्शन होता है कि जो आउटसाइड प्रेशर है, जो आउटसाइड हीट है, जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है, उससे जो सब क्यूटेनियस मसल्स टिश्यूज उनको प्रिवेंट करता है, उनको प्रिजर्व करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल मटेरियल से। सेम थिंग हैपेंस विद दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आल्सो। ये क्या करता है कि जो भी आउटसाइड एनवायरनमेंट है, जो भी आउटसाइड मेम्ब्रेन है, उनसे जो है ये आपका प्रिजर्व करेगा, ठीक है। और आपका एक्सटर्नल मटेरियल्स को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर से इंटरनल पार्ट्स को, इंटरनल ऑर्गेनल्स को प्रिवेंट करता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें सारे जो है ना ऑर्गेनल्स आपके सस्पेंडेड होते हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा, ठीक है। तो आपका जो भी रिमेनिंग ऑर्गेनल्स है, रिमेनिंग सब्सटेंस है, वो क्या होगा, साइटोप्लाज्मा में सस्पेंडेड होता है। ओके, क्लियर? Organelles are the small permanent structures with characteristic morphology that are highly specialized in cellular activities. वो आपके डिफरेंट हो गए, जैसे कि आपका जो है माइक्रोफिलामेंट हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, ठीक है, उसके बाद से आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारा आपका जो है ऑर्गेनल्स हो गए स्मॉल स्मॉल। इंक्लूजन्स क्या होते हैं, दे आर सिक्रीशंस एंड स्टोर द प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये क्या करते हैं कि सिक्रीशंस होते हैं एंड जो भी आपका बॉडी सेल बना रहा है उनको स्टोर करेंगे, ठीक है। जैसे कि सेल में क्या बनेगा, तो हमने क्या किया, हमने खाना तो एक्सटर्नली लिया, हमने सारे मल्टीविटामिन एवरीथिंग वॉट एवर रिक्वायरमेंट ऑफ वो बॉडी वो तो हम आउटसोर्स करें, बट उस एनर्जी, उस सोर्स को हम डायरेक्टली, तो अब विटामिन सी को मैं डायरेक्टली तो यूटिलाइज नहीं करी, मैं आयरन को डायरेक्टली तो यूटिलाइज नहीं कर रही, मैं ग्लूकोज को, स्टार्च को डायरेक्टली तो यूटिलाइज नहीं करी, तो मैं क्या करती हूँ उसको, उस होल स्टार्च को, उस होल शुगर को एनर्जी के लिए यूज करें, मैं उस कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के लिए। तो ये ऑर्गेनल्स क्या करेगा, उसको उस एनर्जी, मतलब उस ग्लूकोज को एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ओके,
और उस एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दे सीक्रेट एंड स्टोर द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ओके। तो आपका जो भी बॉडी में हमने डिफरेंट सोर्सेस से सब्सटेंसेस को लिया, उनको ये यूटिलाइज करेगा, यूटिलाइज करने के बाद क्या करेगा, उनको स्टोर करेगा। अब एनर्जी, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में 24 एटीपी बने, पर मुझे अभी फिलहाल के लिए 12 एटीपी की जरूरत है, तो आई विल यूटिलाइज दोस 12 एटीपी, रिमेनिंग 12 एटीपी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। क्लियर दिस कॉन्सेप्ट कि इंक्लूजन में कैसे फंक्शन होता है। Yes. Okay, okay. So till now, any doubts related to whatever we have studied कि basics of cell जो भी हमने पढ़ा कि different या anatomy में directions या surfaces में कोई doubt, कोई कुछ? Okay, so I'm Please going continue, madam. ahead with it. Yes. Please continue. Please continue. Okay, okay. So other than this, we have extracellular materials. Means कि excess में whatever the substance is present into human body or present into that cell matrix is your extracellular material. Okay, जो extra substances आपके cell surface में present होते हैं. Okay. Now coming to plasma membrane. So मैंने आपको बताया कि most outer covering of cell is your plasma membrane. Okay. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका थिन आउटर कवरिंग होता है जो कि आपकी सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। अगर मैं किसी, फॉर एग्जांपल आप मार्केट भी जा रहे हैं, ठीक है, आपने दाल भी लेना है, आपने चावल भी लेना है, आपने सूजी भी लेना है, आपने आटा भी लेना है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट बैग्स में ना लें और एक ही बैग में ले, तो क्या होगा, हर चीज की इंटीग्रिटी लॉस्ट हो गई और वहां से हर चीज को निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और फिर उसको कुक करके एज पर योर टेस्ट खाना और डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि अब दाल को आटे के साथ कुक करेंगे तो बहुत डिफरेंट टेस्ट आएगा। फिर भी आटा आपने छन्नी से छान के थोड़ा फाइन ग्राइंड पार्टिकल आप सेपरेट कर सकते हैं, बट दाल है, सूजी है और चावल है, तो सूजी और आटा एक कैटेगरी में आ जाएगा एंड आपका दाल और चावल एक कैटेगरी में, तो आपको डिफिकल्टी है वहां पे और वो अपना फंक्शन या अपना टेस्ट नहीं दे पाएंगे फूड को। सेम थिंग हैपेंस विद दिस मेम्ब्रेन। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं होगा तो सेल में जो डिफरेंट इंटीग्रिटीज हैं वो ऐसी ही टू द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट फ्लोट करेंगी एंड पर्टिकुलर मतलब 10 ऑर्गेनल्स एक साथ बैठ गए, ठीक है, 20 माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ बैठ गए, ठीक है। अब आपका गोल्गी apparatus एक साथ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साथ है। अब पर्टिकुलर सेल अब एक जगह होता है तो वो सिंक्रोनाइज फंक्शन करेगा, बट ऐसे होगा तो फंक्शनिंग में, ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म में या सिग्नलिंग करने में हमें बहुत डिफिकल्ट होगा कि पर्टिकुलर सेल से हमें कौन सा काम करवाना है। अगर वो सेपरेटेड होते हैं तो इट विल बी वेरी इजी, बट दे आर एम्बेडेड, एवरीथिंग इज एम्बेडेड, तो हम सिग्नल किसी और को करेंगे और फंक्शन कोई और करेगा, टेस्ट कोई और रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, तो माल फंक्शनिंग हो जाएगा। ओके, तो दैट्स व्हाई अगर उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स को हम डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में, पेपर पॉलीज, पेपर बैग्स या पॉली बैग्स में रख देंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू यूटिलाइज। और डिफरेंट कंटेनर्स में सेम थिंग हैपेंस विद दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि आपके जितने भी डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं एज पर द डिमांड ऑफ द सराउंडिंग, ये उनको सेपरेट करते हैं और डिस्टिंक्ट और यूनिक बनाते हैं। अब डाइजेस्टिव सेल्स हैं, वो रेस्पिरेटरी सेल से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वो डाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं, उनका अरेंजमेंट डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है। बट मैंने सभी सेल्स को, डाइजेस्टिव को भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कट कर दिया, रेस्पिरेटरी का भी, तो हम सिग्नल रेस्पिरेटरी को करेंगे बट मे भी हो सकता है डाइजेस्टिव रिस्पॉन्स करे। तो दैट्स द इंटीग्रिटी, दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? इट इज अ डबल लेयर मेजरिंग अबाउट 4 nm, नैनोमीटर आपका बहुत माइन्यूट होता है एंड दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर्स। ओके, बाइलिपिड लेयर इनका कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे कि बाई लेयर्ड होता है। बाई लेयर मीन्स कि 2 लेयर में होता है,
मीन्स कि इफ आई टॉक अबाउट टू स्ट्रैंड्स ऑफ बीड्स अगर हम साथ में रखते हैं, कुछ उस टाइप का इनका अरेंजमेंट होता है. द राउंड हेड दे आर आउटसाइड towards the liquid surfaces, and hydrophobic tails they are inside. So they form a bilipid layer. Next class में I'll show you the arrangement of photograph. Let me check. And this I don't have. I'll show the photographs. Okay, how these membranes or these bilipid layer is arranged. Okay, so आपका इस तरीके से ये bilipid arrangement होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. Okay, and these bilipid layers ये सील कर देते हैं. Why two strands? क्योंकि strong sealing. Okay, if needle is injected and pulled out, it automatically seals. Okay, so functions क्या है? Separate the inside, जो भी inside सेल का फ्लूइड है या इनसाइड जो भी एनवायरनमेंट है उसको सेपरेट करता है दूसरे से. ओके, सो सेपरेट द साइटोप्लाज्म इनसाइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, separate the cell from another cell, provide abundant surface on chemical reactions that can occur, and regulates the passage of material. How it regulates the passage of material? क्योंकि ये मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल होता है. आपने स्कूल लाइफ में एक पोटैटो वाला टेस्ट तो डेफिनेटली किया होगा, या सबने कभी ना कभी लाइफ में जो है चने, राजमा, छोला या किशमिश जरूर भिगोया होगा. हाउ दैट हैपेंस, यू नो, कि अगर आप देखेंगे ये ग्रेन्स बनते कैसे हैं, तो हम जब पी को देखें या फिर क्या कहते हैं किशमिश को देखें, इफ आई टॉक अबाउट रेजिन्स की बात करूं मैं, तो क्या होता है कि ग्रेप्स दे कंटेन वेरी गुड अमाउंट ऑफ वाटर, बट हम उनको ड्राई करते हैं और वाटर सारा उसमें से जब मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो दे कन्वर्टेड इनटू रेजिन्स और किशमिश. ओके, but when we put again into the this water, what happens? They become little bit swollen up. Why this? Because जो membrane है उसकी, जो रेजिन की कवरिंग है, आप देखेंगे वो permeable होती है. That's why this whole process is possible. Same thing happens with your cell also, कि the plasma membrane is permeable. तभी हमने एक पोटैटो टेस्ट करते हैं. पोटैटो टेस्ट में what we used to do, हम पोटैटो को लेते हैं, उसको पील करते हैं. पील करने के बाद क्या करते हैं, हम इनसाइड जो है वो सॉल्टेड वाटर करके और टूथपिक लगा देते हैं जो मार्कर से कि हमने यहाँ तक वाटर लिया है. ठीक है, और फिर हम आउटसाइड एनवायरनमेंट में भी वाटर रख देते हैं और उस पोटैटो को उसमें जार में डिप कर देते हैं, स्टैंडिंग सिलेंड्रिकल कट करके, कि वो उसमें एम्बेडेड ना हो, ऐसे फ्लोट होता रहे. ठीक है, और नीचे सर्टेन बेस ऑफ द पोटैटो इज कवर्ड विद वाटर. बट आफ्टर 2 hours व्हाट वी विल सी, कि वो जो वाटर का लेवल है इनसाइड द हॉलो पोटैटो वो राइज करता जाएगा टूथपिक से. तो व्हाई दिस इज सो? ये परमेबिलिटी को शो करता है. ओके, सो पैसेज ऑफ मटेरियल विल बी पॉसिबल. तो ये सारा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर को पढ़ने के लिए दीज आर द सर्टेन एक्सपेरिमेंट व्हिच वी यूज्ड टू डू. ओके, so the movement across the membrane if I talk about, so selective permeability if I talk about, कि किसको permeate देना है किसको नहीं देना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी होती है. ओके, so the movement across take place in two ways, passive or active movement. Passive is using, while active movement energy is consumed from the एनर्जी. पैसिव जो मैं कहूँ कि ये बहुत लेजी है, पैसिव मीन्स लेजी, तो वहां पे वो एनर्जी का एसिड बहुत ज्यादा यूज नहीं करेगा. बट जो एक्टिव स्टूडेंट होगा, जो एक्टिव होगा, वो अपनी सारी एनर्जी को यूज कर लेगा. ओके, तो एक्टिव जो होगा वो एटीपी से एनर्जी लेगा, पैसिव जो होगा वो मूवमेंट करेगा बट अनदर सोर्स से करेगा. ओके, सो पैसिव मूवमेंट्स आपकी क्या होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेट डिफ्यूजन होगा, ऑस्मोसिस होगा और फिल्ट्रेशन होगा. ठीक है, तो सिंपल डिफ्यूजन में जैसे कि आपका एल्विलाई ऑफ लंग्स में होता है कि आप एयर एक्सटर्नल सोर्स से लेते हैं, वो डिफ्यूज होकर के और उनको बलून शेप में इन्फ्लेट कर देता है. ठीक है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन में जो है आपका क्या होगा कि अमीनो एसिड्स का जो हमारे सेल में प्रोटीन की, लिपिड प्रोटीन की जो नीड होती है उसमें सॉल्युबिलिटी पे बेस करता है. ये मैं फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. ऑस्मोसिस जो मैंने आपको रेजिन्स का एग्जांपल दिया या पोटैटो का, ये ऑस्मोसिस का एग्जांपल था. फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि वो फिल्टर करके सर्टेन पर्टिकुलर, जैसे कि आपका क्या कहते हैं कि हम मास्क लगाते हैं. मास्क में क्या होता है, हम ये करते हैं कि हम
उसमें मास्क में आप देखते होंगे कि क्या होता है, सिंपली जो है स्मॉल साइज फिल्टर्स होते हैं जो कि सर्टेन फिक्स साइज ऑफ पार्टिकल को ही अंदर जाने देते हैं। तो आपका फिल्ट्रेशन हो गया, ये सच फिल्ट्रेशन सेल्स आर प्रेजेंट इनटू योर किडनी, जहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज अगेन अ पैसिव मूवमेंट। एक्टिव में अगर मैं बोलूं तो आपका इक्विलिब्रियम बेस्ड सारा प्रोसेस है, एंड जैसे कि आपका जब नीड होती है तभी ये पोटेशियम कैल्शियम चैनल पंप्स होते हैं जो वर्क करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इम्बैलेंस हो जाता है जब बॉडी में, तो कहाँ से उस चीज को लेकर के और उसका मेंटेन करना है, उस टाइम पे ये चैनल्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी इन डिटेल। एनी डाउट टिल नाउ? गाइस एनी डाउट? नहीं मैंने थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। Okay. If you think it is, I'll make little bit more simpler. Just cell part is clear to you? जी। Okay. No need to think about the, the directions and all. I will just give a very limited part. Okay. And cell part I'll make in next class. I'll try to make it more simpler. Okay. I'll try to make it more simpler if you feel कि बहुत ज़्यादा tough है तो. Although this is very basic, but still I'll try to find some ways, okay? जो आपको आपके curriculum के हिसाब से basically आपका सारा purpose solve out हो जाए, okay? So I'm ending this lecture now, guys. Just have a revision whatever we have studied for whenever we are coming for next class, okay? So once you understand the basic of cell and tissue, then systems will be very easy for you people, okay? So all the best and have a nice night ahead.